Welcome to session 3 of economics. In this session we will cover elasticity of demand, right? तो इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो है मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, determinants of price elasticity, and also will cover income elasticity and cross elasticity of demand. Now let's see what is elasticity of demand. देखिए elasticity means basically elasticity क्या है? In economics we can say that elasticity refers to the ratio of relative changes in two quantities. किसी भी two quantities में किसी भी तरीके का जो change आएगा that is called elasticity, right? So elasticity of demand, it is defined as an responsiveness or sensitiveness of demand to a given change in the price of a commodity. कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज आ रहे हैं और उससे डिमांड में क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट वी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, right? So basically it shows the reaction of one variable with respect to the change in other variables on which it is dependent. तो ये जो elasticity है ये इंडेक्स शो करती है रिएक्शन का, एक वेरिएबल का रिएक्शन दूसरे के ऊपर क्या आ रहा है. So that is what we say elasticity, right? Now we'll do price elasticity. So what is price elasticity? That means it is it's a kind of elasticity, right? Price elasticity of demand is one of the important concepts of elasticity that is used to describe the effect of change in price on quantity demanded. As it is given on slide also, responsiveness or sensitiveness of demand for a commodity to the changes in its price. मीन्स पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस में चेंजेस आने से डिमांड कितनी सेंसिटिवली चेंज होती है. सो दिस इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इन फॉर्मूला वी कैन से दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Here an increase in supply, for example manufacturer increase the supply of product, right? तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस में क्या होगा, फॉल इन प्राइस, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज है, सप्लाई बढ़ गई है लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो रिड्यूस होकर के 5 रुपीज पर आ गया है. एज यू कैन से पहले जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी वो हो रही थी 10 यूनिट्स की और प्राइस था 20 रुपीज, राइट? जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हुई मीन्स 13 यूनिट्स की क्वांटिटी 3 यूनिट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गई. बट यहाँ पर क्या हुआ कि देयर इज अ फॉल इन द प्राइस. बट हेयर from this diagram we can say that a small increase in quantity demanded brought a large fall in the price, right? तो यहाँ पे जो supply curve होगा that will shift to outward. Next is, this is what price elasticity of demand. An increase in supply, it brings what, small price change and large quantity change. As you can see, so this is what small fall in price, it results in large increase in quantity. To calculate the price elasticity of demand, basically we express change in price as a percentage of average price, and which is the average of initial and new price, right? And we express change in quantity. How we express change in quantity demanded? It will be expressed as a percentage of average quantity demanded, that is average of initial and new quantity. So this is what elasticity of demand for pizza. Here you can see that price initially was 20.50 paisa and
20 rupees 50 paisa and quantity demanded is 9, right? As the price falls to 1950, यहाँ पर जैसे ही 1950 पे आया प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर के कितनी हो गई 11. सो जो आपका पॉइंट बन रहा है 20 रुपीज 50 पैसा और 9 क्वांटिटी का, दैट इज द ओरिजिनल पॉइंट. और अब जो प्राइस रिड्यूस हो गया है और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, तो वहां पे जो ये दोनों पॉइंट कंसाइड करें, दैट इज व्हाट न्यू पॉइंट. सो वी कैन से दैट the price fall by ₹1 and quantity demanded increases by 2 pizzas. So average price is what? It is 20 and average quantity demanded is 10. So this you can see, this the 20 at 20 rupees 50 paisa, and when the quantity is 9, it was the original point, and new point is what? When it the price reduces to 19 rupees 50 paisa and quantity increased to 11, right? So by this we can calculate change in quantity demanded. The percentage change in quantity demanded is percent change we can show with the help of delta. जो small triangle बना है, that is what delta, which is calculated as change in quantity upon my quantity average, which is 2 by 10, that will be 1 by 5. And how do we calculate percentage change in price, which is calculated as change in price upon price average, which is what? ₹1 divided by 20. The price elasticity of demand, as we said earlier also, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. अभी हमने कैलकुलेट किया कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 1/5 अभी हमने कैलकुलेट किया. और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है, दैट इज व्हाट? 1/20. तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज 20/5. That is elasticity is what? 4. Now there are various degrees of price elasticity. First is inelastic and elastic demand. First we'll understand what is inelastic. So demand, we can say that demand elastic, it may be inelastic. Elastic demand may be also known as unitary elastic, and which can change from 0 to infinity, right? तो unitary elastic हो सकती है, inelastic हो सकती है, या फिर 0 to infinity change हो सकती है, right? So अगर हम बात करें inelastic demand की, inelastic मतलब कोई change नहीं आ रहा है. So if the quantity demanded does not change when the price changes. अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. सो अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देन वी विल से दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 एंड गुड एज परफेक्टली inelastic demand. This is the figure shows the case of a good that has perfectly inelastic demand. अब आप इसमें देख सकते हैं कि डिमांड हमारी कांस्टेंट है, प्राइस these are changes but prices are changing, but the demand is what? It is same at all the level of prices. Now if percentage change in quantity demanded equals the percentage change in price, so that is what? Elastic. The price elasticity of demand equals to 1, and that is what? Good has unit elastic demand, right? So figure illustrate this case, a demand curve with ever declining slope. तो ये हमारा चेंज होगा. नेक्स्ट इज द
if percentage change in the quantity demanded is smaller than the percentage change in price, then the price elasticity of demand is less than 1. Then good has inelastic demand, and if the percentage change in quantity demanded is greater than 1, राइट तो अगर ग्रेटर देन 1 आती है हमारी प्राइस, तो उस केस में क्या होगा, this price elasticity of demand is greater than 1, then the good has elastic demand. This is how we are defining inelastic demand and elastic demand, right? तो inelastic के केस में हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो स्मॉलर है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उस केस में हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. It means that product, that commodity is having inelastic demand. Otherwise greater than 1 आती है तो हम उसे बोलेंगे elastic demand. This is how we describe elasticity if the percentage change in quantity demanded is infinity, right? Large, when the price barely changes, थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक चेंज होती है, then we say that the price elasticity of demand is infinite and has perfectly elastic demand. This you can see that here the demand is infinity. Now elasticity along a straight line demand curve. This figure show how demand become less elastic, right? Here the demand is less elastic. अब देखिए यहाँ पर here the demand becomes less elastic as the price fall along a लीनियर डिमांड कर्व. यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से डिमांड भी थोड़ी सी हमारी इंक्रीज हुई है. सो एज द प्राइसेस अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, द डिमांड इज इलास्टिक. एट द प्राइसेस बिलो द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, here the demand is inelastic. As you can see, this is what elastic demand and this is what inelastic demand. Now we can take it with the help of example. If prices falls from 25 to 15, right? अगर हमारे prices 25 से 15 तक आते हैं तो क्या होगा, quantity demanded increases from 0 to 25 pizzas, right? The average price is rupees 20 and the average quantity is 10. So here the price elasticity of demand is, this we can calculate, which is 4. So if the price fall from 10 to 0, अगर 10 से 0 तक हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, 30 से बढ़कर के वो 50 तक आ जाएगी. तो उस केस में एवरेज प्राइस क्या होगा, 5 एंड एवरेज क्वांटिटी इज 40 pizzas. So here the price elasticity is 20/40, that is divided by 10/5, which is equal to 1/4. Again, if price falls from 15 to 20, 15 से 10 रुपीज़ तक प्राइस फॉल हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 20 से 30 इंक्रीज हो जाती है. तो इस केस में एवरेज प्राइस क्या होगा, 12.50 एंड एवरेज क्वांटिटी इज व्हाट, 25. Here the price elasticity, which is equal to 1. Now the change in total revenue due to a change in price, it depends on the elasticity of demand. Revenue में change means change आ रहा है due to change in price,
राइट। प्राइस में चेंजेस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उससे टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो इस केस में इफ डिमांड इज इलास्टिक, right, then a 1% price cut increases the quantity sold by more than 1% and total revenue increases. तो अगर डिमांड इलास्टिक है तो उस केस में अगर 1% प्राइस कट किया जाता है एंड उसकी वजह से जो क्वांटिटी सोल्ड है वो इंक्रीज होती है बाय मोर देन 1%, देन द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। यस, डेफिनेटली द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी जो सेल की जा रही है वो मोर देन 1% की जा रही है। And if the demand is inelastic, a 1% price cut decreases the quantity sold by more than 1% and total revenue decreases. This is how we can see from the slide that कि प्राइस में चेंज आने से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। तो डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो हम 1% प्राइस कट कर रहे हैं, 1% प्राइस कट डिक्रीजेज, बट क्वांटिटी सोल्ड जो हो रही है वो मोर देन 1% हो रही है एंड टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज। एंड इफ इट इज यूनिटरी इलास्टिक देन अ 1% प्राइस कट इंक्रीजेज द क्वांटिटी सोल्ड बाय 1%। और इस केस में क्या होगा, अगर यूनिटरी इलास्टिक का केस है तो यहाँ पर रेवेन्यू जो रहेगा वो अनचेंज होगा। नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट। अब देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज बेसिकली हियर इन दिस टाइप there are two products, right? So we can say that a proportionate change in the quantity demanded for a particular commodity in response to a change in price of another related commodity, right? So it is a measure of the responsiveness of demand. Demand में क्या change आ रहा है एक particular product के लिए to a change in the price of a substitute or a complement, right? अगर सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। एंड हेयर वी आर कंसीडरिंग दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन बाय दिस वी कैन से दैट elasticity in case of cross elasticity, percentage change in quantity demanded of commodity X upon percentage change in price of commodity Y, right? So percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of substitute or complementary goods, right? तो इस केस में बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है प्रोडक्ट X में, राइट? वो किस वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट Y में प्राइसेस में चेंजेस आए हैं। तो Y प्रोडक्ट क्या होगी, X की सब्स्टिट्यूट होगी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये पॉजिटिव इफेक्ट देगी एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये नेगेटिव इफेक्ट देगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन सी दिस फिगर शोज increase in quantity, right? Increase in quantity demanded when the price of burger क्या है, बर्गर और पिज्जा, यहाँ पे हम दो कमोडिटी ले रहे हैं, राइट? तो बर्गर वी कैन सब्स्टिट्यूट इट फॉर पिज्जा, राइट? तो दिस फिगर शोज दैट कि पिज्जा की इंक्रीज हो रही है डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेज। अगर प्राइस बर्गर के इंक्रीज होते हैं तो कस्टमर क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टू पिज्जा एंड दे विल डिमांड फॉर पिज्जा एंड क्वांटिटी demanded for pizza will rise. Now next is the figure also shows that decrease in the quantity of pizza demanded when a price of soft drink
rises, right? So price of soft drink क्या होगा, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी, तो प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक अ कॉम्प्लीमेंट इट विल राइज, तो ये क्या होगी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. नाउ इज another type of elasticity is income elasticity. अब हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी क्या है. इनकम इलास्टिसिटी इज रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेसिकली. तो इसमें हम देखते हैं कि कस्टमर की इनकम में चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है. मीन्स अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज होगी, राइट, तो उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, इट मीन्स ही कैन purchase more things. If he is purchasing more products, that means he is demanding more, right? So income elasticity of demand, we can say that it may be defined as the ratio or proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in the income. तो इसमें भी हम other things को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, उस चीज़ को हम कांस्टेंट मानते हैं, बट इसमें सिर्फ इनकम को हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनकम का क्या इफेक्ट आ रहा है डिमांड के ऊपर, राइट. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन इनकम. हियर इज द फॉर्मूला. एज यू कैन सी, percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Now if income elasticity of demand is greater than 1, right, अगर वो greater than 1 आती है तो demand is income elastic, right. और इसको हम categorize करते हैं, product is normal good. If the income elasticity of demand is greater than 0, then but it is less than 1, then demand is income inelastic and the good is normal good. थर्ड केस है, अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव आ रही है यहाँ पर, तो उस केस में ये होगी हमारी इंफीरियर टाइप की गुड, राइट. सो इन दिस फिगर एन इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज इन डिमांड ब्रिंग्स अ लार्ज राइज इन प्राइस. डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा एंड अ स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो जिस भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी, तो उस केस में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से सप्लाई वो क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी डिमांडेड पूरी फुलफिल नहीं की जा रही है. मीन्स कस्टमर्स की डिमांड पूरी तरीके से फुलफिल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइज होगा. एज यू कैन सी, so there is a small increase in quantity demanded, but from this you can see there is a large increase in price, right. तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, एन इंक्रीज इन डिमांड ब्रिंग्स व्हाट, जो हमारा डिमांड कर्व है इट विल शिफ्ट टू राइट, दिस इज राइट साइड, राइट. सो large price change and small quantity change. Next is, and in this figure an increase in demand. Here demand is increases, डिमांड इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट आ रहा है, स्मॉल राइज इन प्राइस. हेयर यू कैन सी 20 रुपीज से 21 रुपीज हुआ है, बट दिस इज द केस ऑफ स्मॉल प्राइस चेंज, ठीक है. यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा हुई है, लार्ज क्वांटिटी चेंज बट अ स्मॉल राइज इन प्राइस एंड लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो यहाँ पर क्या है, डिमांड कर्व D0 से D1 पे शिफ्ट हो रहा है,
दैट मीन्स कि हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रही है, राइट, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा कि वो स्मॉल अमाउंट में राइज होगा। राइज तो होगा क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस राइज होगा, बट स्मॉल अमाउंट में राइज होगा क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। तो देखते हैं अब प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। हियर फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दैट इज हाउ सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट द डिमांड और द प्राइस। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर किसी भी कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि पीपल इनइलास्टिक डिमांड होगी, दैट मीन्स कि पीपल दे विल हैव टू पे हायर प्राइस फॉर सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स विच आर नॉट अवेलेबल एज सब्स्टिट्यूट्स। लाइक हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल जिंजर की या गार्लिक या फिर सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसके लिए प्राइस हाई पे करना पड़ सकता है कस्टमर को। बट जैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट के आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अगर हमें कोलगेट नहीं मिला, वी कैन शिफ्ट टू पेप्सोडेंट, राइट। तो देयर आर वेरियस टाइप्स दिस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल टू अस, राइट। टूथपेस्ट में अगर हमारे पास टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं है तो वी कैन यूज टूथ पाउडर, राइट, या फिर आप नेचुरल जो दातुन है वो यूज कर सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। देन नेचर ऑफ कमोडिटी, यस, नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत अफेक्ट करती है। अब देखिए, नेचर ऑफ कमोडिटी मीन्स द कमोडिटीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज एंड इसेंशियल्स। अब वो कमोडिटी हमारी नेसेसरीज है या इसेंशियल्स की कैटेगरी में आती है। दे आर टेंड टू बी इनइलास्टिक बिकॉज people buy them whatever may be the price, like rice जो necessaries में है, essential goods में है, rice, wheat, sugar, milk, इसके लिए कितना भी प्राइस हो वो पे कर सकता है कस्टमर। लेकिन कुछ गुड्स होती हैं जो कि कंफर्ट्स या लग्जरियस गुड्स होती हैं, जिनकी डिमांड जो होगी वो इलास्टिक डिमांड रहेगी। जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, ये क्या है? कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट में आते हैं, तो इनकी डिमांड इलास्टिक डिमांड रहेगी। देन इज द वेटेज इन द कंजम्पशन। वेटेज इन द कंजम्पशन दैट मीन्स कि हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, राइट। जैसे कुछ प्रोडक्ट होती हैं कि सिंगल यूज प्रोडक्ट होती हैं। Single use goods are those which can be used for only one purpose, और कुछ goods होती हैं कि वो multiple use goods होती हैं which can be used for a variety of purpose। तो जो single use product होंगी उनकी डिमांड क्या होगी? inelastic डिमांड होगी, right। Like we can say eatables, fertilizers, इनकी डिमांड क्या होगी? inelastic। जबकि जो कमोडिटीज जिनके हम सेवरल यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं, उनकी डिमांड रहेगी इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट इज द टाइम फ्रैक्शन इन एडजस्टमेंट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। तो कंजम्पशन पैटर्न कैसा है? तो कंजम्पशन पैटर्न इट डिपेंड्स की लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, लाइक शॉर्ट पीरियड हम कंसिडर करते हैं। Time is inelastic because consumption habit of people, custom and tradition, they do not change, while demand tend to be elastic in long period, right। तो ये चीज़ है कि अगर हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए डिमांड, मतलब हम डिमांड कर रहे हैं लाइक कस्टम्स के लिए या ट्रेडिशंस के लिए, तो उस केस में हमारी इनइलास्टिक डिमांड रहती है। और अगर लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं हम, so there is a possibility of all kinds of changes, so the demand tend to be elastic. Then what is the range of commodity use? That is, there are certain products
that are likely, like imported cars, computers, ठीक है. तो which are costly in nature. So a few other goods like जैसे needles हैं, they are low priced goods. So in all these cases, a small fall in price will insignificant effect on their demand. So demand will be inelastic in this case. और नॉर्मल, अगर नॉर्मल प्राइस चेंज होता है तो डिमांड रहेगी इलास्टिक. नेक्स्ट इज द proportion of market supplied. That means कि मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, राइट. तो अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट तो उसकी डिमांड रहेगी इलास्टिक डिमांड रहेगी. इलास्टिसिटी जो रहेगी वो इलास्टिक रहेगी. और अगर मार्केट में सप्लाई उसकी लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है या कभी कभी होती है, प्रोपोर्शनली कम रहती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस सप्लाई मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक रहेगी. सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट. सो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 और यूनिटी और 1, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी और 1, और इट मे बी लेस देन यूनिटी और 1. दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. This is zero income elasticity. Then how do we measure income elasticity of demand? This is proportionate change in demand upon proportionate change in income. This is shown through delta Q upon original quantity plus delta change in income is denoted by delta Y upon original income. This is what income elasticity of demand, right. When income of consumer 2500 है and he purchases 20 units of X commodity, and when income rises to 3000 तो उस केस में वो परचेजेस भी बढ़ा करके 25 यूनिट्स की करता है. So thus income elasticity of demand is this. चेंज इन क्वांटिटी कितना चेंज आया 5 यूनिट्स में, और ओरिजिनल क्वांटिटी है यहाँ पर 20, प्लस इनकम में कितना चेंज आया 500 का, और ओरिजिनल इनकम है 2500. सो हेयर इनकम इलास्टिसिटी विल बी 1.5 which is more than 1. This is cross elasticity of demand that gives relationship between, अभी हमने पढ़ा जैसा कि this is with example. If the xt demand reduces tremendously, then its effect could be seen in the demand of sugar and milk. So cross elasticity is proportionate change in demand for product X upon proportionate change in price of product Y. This is the cross elasticity for substitutes, demand for Y and price for Y. This is in case of complementary goods. For neutral products, so this is the end of session 3. At the end there are 2 questions to give answer. First question is how do you measure price elasticity, and you have to explain degrees of price elasticity. Second is what are the factors that affect income and cross elasticity. Thank you so much.